sites. उन site पर क्या है? Nobody wants to listen to it. Today everything is open. They can go and search other sites and get to know what the other person has spoken on that topic. Nobody wants to speak what you have, what the other author has written in that article. They want to listen to you, your urges. Yeah, and you have these urges. Everyone has these urges. So you must keep in mind that it should be your thought, your urge, your brooding, nothing else. आपके खुद के thoughts होने चाहिए, आपकी खुद की brooding होनी चाहिए. अगर आपकी खुद की होंगी, मजा आएगा. अगर आप कहीं से copy करोगे, people are not interested. Like let's say for example, if I start giving you someone else's thoughts, cut copy paste करके करूँगा, will I be able to hold my audience? That's not possible. तो कैसे possible हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा अगर आप लोग वही करोगे जो आपके मन में आ रहा है और बाकियों से आप लर्न करोगे, इंस्पायर करोगे, आप लोग इंस्पिरेशन लोगे, मोटिवेशन लोगे, उसके बाद अपने ब्रूडिंग दोगे, अपने सब कुछ थॉट दोगे. तो नंबर वन, इट शुड बी योर थॉट्स, योर आइडियाज, योर कन्विक्शन, योर अर्जेस, एंड यू हैव देम. यू हैव सच एन अर्ज. डन. नंबर वन. देन नंबर टू, नाउ व्हाट इज अ प्रिपरेशन? ये जो आपको ब्रूडिंग करनी है, अर्जेस जो है, when you are facing audience, कभी भी आपको ऑडियंस को फेस करने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, the confidence that you have, ना इसके अंदर ये जो प्रिपरेशन आपने करनी है, what kind of preparation? What does it mean? Preparation means thinking, brooding, recalling, polishing them, organizing them. अब आपने जो वो सब कुछ आपने जो लिखना है पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स को लिखने के बाद you have to polish them, you have to speak with somebody. Now, जो आपकी स्पीचेस होती है ना, दे आर कल्टिवेटेड, वो धीरे धीरे करके बनती हैं. प्रेजेंटेशन धीरे धीरे बनती है. इफ यू आर जस्ट टेकिंग आउट पॉइंट्स एंड देन यू आर ट्राइंग टू कम ऑन स्टेज एंड एड्रेस ऑडियंस विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, नो, इट शुड बी कल्टिवेटेड. यू मस्ट स्पीक विद पीपल, you must have discussions, arguments with the colleague, with your siblings, with the parents, with your wife, with your husband. You must talk. Keep on talking. मैं तो कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको इतना बोलना है, if you have to come on stage address audience, अगर आपको 10 मिनट बोलना है तो आपके पास 10,000 घंटे का टॉपिक होना चाहिए. क्यों? That not only you will be able to speak confidently, but also if they ask you question, anybody interjects you, anybody stops you, ask you question, you'll be able to answer very confidently. Please do not speak for 10 minutes. Do not prepare for 10 minutes of talk. Just because you've got 10 minutes of talk, 10 minutes been allotted to you. If you are allotted 10 minutes, you must have too much of data to give to them. Too much of it data. अब data को कैसे करना है? See, I would say you must write 100 points and discard 95 of them. क्या कहा मैंने? Let me repeat once again. You must write down 100 points and discard 95, 96, 97. आपको जहां जहां से पॉइंट मिलते हैं पहले तो खुद लिख लीजिए ऑन द टॉपिक. खुद लिखने के बाद, अब आपने लिख लिए पॉइंट्स को, खुद लिखने के बाद देन यू मस्ट गो टू गूगल एंड ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द ब्लॉग्स व्हिच आर बीन रिटन ऑन द टॉपिक. उसके बाद लिखते जाओ. नाउ यू हैव 100 पॉइंट्स. नाउ आफ्टर हैविंग 100 पॉइंट्स, आपको 95, 96, 97 को उठा के क्वाक थू करके फेंक दो. नाउ व्हाट इज द यूज? इट इज बेटर टू बी रिमेंबर्ड. I always say, it is always better to be remembered for covering 2-3 ideas instead of confusing the audience with too many topics, too many ideas. अपने ऑडियंस को कंफ्यूज करने की जगह पर, बहुत सारे आइडियाज को कंफ्यूज करके देने की जगह पर अपने ऑडियंस को 2-3 टॉपिक दे दो, लेकिन जो भी दो वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए. That should be awesome. Do not confuse your audience, and that is only possible if you are preparing yourself, and the right kind of preparation is when you are writing down all the points, सबको लिख लो, जितने भी पॉइंट्स आ सके लिख लो, उसमें से keep the best 3, 4, 5 of them. 3-4 को बेस्ट को रखो and discard the rest of them, and then come on stage and address audience. They should be your brooding, your brooding, your urges, and you have these urges. You have these urges, right? So ये जो होना चाहिए आपकी खुद की ब्रूडिंग, आपकी अपनी समझ होनी चाहिए कि जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है, जैसे आपको बताता हूँ मैं, आजकल व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी यूनिवर्सिटी चल रही है. व्हाट्सएप से जितना भी चैनल है, जितने भी आपके प्रिंट मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा बिका हुआ होता है. जितने भी करप्ट कंट्रीज हैं यहाँ पर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे पहले करप्ट कंट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को खरीदा जाता है. सबके हमारे देश में बिकी हुई है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस ढंग से इंडिया की बिकी हुई है. और जो सोशल मीडिया वहाँ पर ट्रोलर्स लगा के उनके आइडियाज को चेंज किया जाता है. तो आपको अपनी अकल से यूज़ करना है कि क्या फेक है क्या नहीं है. बहुत कुछ फेक आता होता है.
है ना? तो आपको अपनी समझ लगा करके यू हैव टू गिव योर ब्रूडिंग, योर अर्जेस, योर थॉट्स, योर आइडियाज, एंड दैट्स व्हाट पीपल वांट टू लिसन टू यू, दैट्स व्हाट पीपल वांट टू लिसन। अगर मैं आपको कहीं से कॉपी करके देना शुरू करूंगा, क्या होगा? अगर मैं यहाँ से रीड करता रहूंगा, आई हैव द प्रेजेंटेशन, मेरे पास सारी की सारी प्रेजेंटेशन है विच आई एम गिविंग टू यू, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरी अपनी है, सालों का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं यहाँ से कॉपी उठा करके करूंगा तो क्या होगा? स्टूपिडिटी होगी, है ना? कोई भी नहीं टिकेगा, कोई लर्निंग नहीं होगी आप लोग को। ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ सबके सब नेट पर है, लेकिन ये वाले टॉपिक नहीं है, ये मेरे ब्रूडिंग है, ये मेरे अर्जेस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, एंड दैट्स व्हाट पीपल वांट टू लिसन टू यू, दैट्स व्हाट पीपल वांट टू हियर फ्रॉम यू। तो पहली बात मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, पहली है दैट इट शुड बी योर थॉट्स, योर आइडियाज, योर कन्विक्शन, योर अर्जेस, यू हैव देम एंड यू हैव सच एन अर्ज। डन, नंबर 1। नंबर 2, प्रिपरेशन का मतलब होता है थिंकिंग, ब्रूडिंग, पॉलिशिंग देम एंड ऑर्गेनाइजिंग देम। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पॉलिशिंग? पॉलिशिंग का मतलब उसको धीरे धीरे डिस्कस करके आर्ग्यू करके वो धीरे धीरे टॉपिक बनता है। हाँ, तो यू मस्ट पॉलिश देम बाय टॉकिंग, बाय डेवलपिंग देम, वो धीरे धीरे कल्टीवेट होता है। तो आपको डिस्कस करना चाहिए, ऐसे नहीं आपने दिया, प्रैक्टिस करी, मिरर के सामने आए और प्रैक्टिस करके आपने दे दिया। हाँ, इसमें कुछ ऐसे करोगे ना तो देयर बी समथिंग मिसिंग। एंड एज ए गाइड इफ यू कम टू मी एंड से अनुराग ये मेरी प्रेजेंटेशन है, ये मैंने दी थी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ये रही, आप बताना क्या कमी है। मैं कहूँगा देयर इज समथिंग मिसिंग। आप कहेंगे अनुराग व्हाट दैट समथिंग इज? मैं कहूँगा देयर इज समथिंग मिसिंग। अनुराग व्हाट दैट समथिंग इज? आई डोंट नो, देयर इज समथिंग मिसिंग, आई डोंट नो। दिल नहीं है उसमें, अर्ज नहीं है आपकी, उसमें आपका अर्नेस्टनेस नहीं है, अर्ज नहीं है, वो मजा नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है तुम्हारी प्रेजेंटेशन में, ये होता है, राइट गाइस? उसके बाद मैंने आपको बताया है दैट यू हैव टू राइट डाउन 100 पॉइंट्स एंड डिस्कार्ड 95 ऑफ देम। राइट डाउन 100 पॉइंट्स एंड डिस्कार्ड 95 ऑफ देम। एंड द लास्ट आई टोल्ड यू सो फार, इट इज बेटर टू बी रिमेंबर्ड फॉर covering 2-3 points or 3-4-5 points instead of confusing your audience with 100 of them. Done? Next. अब while giving your presentation, अब आपने ये प्रिपरेशन में समझ लिया कि आई हैव टू, ये जितने पॉइंट्स हैं मेरे जैसे प्रिपेयर करना है, ये मेरी अपनी ब्रूडिंग होनी चाहिए, मुझे कहीं से कॉपी नहीं करना है, मुझे कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके नहीं देना। उसके बाद इतना ही काफ़ी नहीं होता, अभी आपको और भी चीज़ें सीखनी है। देखिए, आपको 4 बातें बताई मैंने। अगर आपको अपने यू वांट टू मेक योरसेल्फ अ गुड स्पीकर, 4 बातें आपको चाहिए। नंबर 1, यू मस्ट डेवलप डीप ड्राइविंग डिजायर टू मेक योरसेल्फ मोदी, ओबामा, ट्रम्प। जब तक अपने अंदर ये अर्ज नहीं लेके आओगे दैट आई वांट टू बी द बेस्ट वन, ये अर्ज ऑन द डेप्थ ऑफ योर डिजायर, मैं हमेशा कहता हूं ऑन द डेप्थ ऑफ योर डिजायर डिपेंड्स द स्विफ्टनेस ऑफ योर प्रोग्रेस। आपकी जो प्रोग्रेस की स्विफ्टनेस है वो डिपेंड करती है आपके अंदर कितनी ज़्यादा डीप डाउन डिज़ायर है। अगर आप इस चैनल पे आते हो, देखते हो और आधे घंटे के बाद चले जाते हो या 10 मिनट आते हो चले जाते हो, अगर इस ढंग से आप आ रहे हो जा रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको एक स्पीकर बनने में कितने साल लगेंगे। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोज़ को बहुत ही डेडिकेटली वॉच करते हो, उसके बाद जा करके आप उसके बारे में डिस्कस करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको बता सकता हूँ आपको कितने साल नहीं, कितने महीने, कितने हफ्ते लगेंगे। ऑन द डेप्थ ऑफ योर डिजायर डिपेंड्स द स्विफ्टनेस ऑफ योर प्रोग्रेस। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है, सिर्फ क्लासेस लेकर क्या होगा? बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, वो क्लासेस पर क्लास देखते हैं, वो बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, उसके बाद दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स। इससे कुछ नहीं होने वाला। देखने से, वीडियोस देखने क्या होगा? ज़्यादा बुक्स पढ़ने से क्या होगा? मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे बुक्स ज़्यादा पढ़ रखी हैं। क्या लाइफ है? कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको इन सब पॉइंट्स को लिखना है और सारे के सारे पॉइंट लिखने के बाद नाउ यू हैव टू मेक योर टॉक वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ यू मस्ट यूज प्रॉप्स। अब ये प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स होते हैं कोई ना कोई आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई एग्जिबिट, और यू मे यूज पॉप एंड प्रेजेंटेशन। वाइट बोर्ड हो सकता है आपके पास, यू मे यूज अ वाइट बोर्ड और यू मे यूज ओवरहेड प्रोजेक्ट OHP, फ्लिप चार्ट आप यूज कर सकते हो, या फिर आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट हो। यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ एग्जिबिट। यूज दिस प्रॉप्स बिकॉज these props, they form a picture in the mind of your listener. You have not only to get to their mind through ears, but you must get to their mind through eyes also. So show them pictures, exhibit, objects, PPT, pop and presentation, whiteboard. I wish I had a whiteboard. मैं आपको सब कुछ ना खड़े होकर यहाँ पर whiteboard से सिखाता,
यहाँ पर लिख करके व्हाइट बोर्ड से, स्मार्ट बोर्ड से आपको बताता, मजा आता, मजे ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता कि नॉट ओनली यू वर लिसनिंग टू मी बट आई वाज बीन एबल टू राइट आल्सो। कितना अच्छा रहता मैं अगर आप लैपटॉप से लिखता रहता, आपको बताता रहता, लिखता रहता, बताता रहता, इट वुड बी फन, आई टेल यू इट वुड बी फन। यहाँ से कर नहीं पा रहा हूँ मैं, so that was also one of the possibilities. Done. So you must use props to make points like pictures, movies, objects, etc. Done. Okay. Next. Now every speech has a set pattern. Must have a set pattern. Should have a set pattern. Ought to have set pattern. Now what are these patterns? Be very careful. Listen to it. आपकी स्पीच जो है, इट कुड बी प्रिपेयर्ड स्पीच और इट कुड बी अ इम्प्रॉम्प्टू स्पीच. बोथ द स्पीचेस शुड हैव अ सेट पैटर्न. पैटर्न मीन्स you talk about a problem, let's say coronavirus. So you talk about coronavirus and then you give away one solution. Lockdown is the solution. So you speak on coronavirus and then you speak about the solution. This is called problem solution pattern. The second could be when you are talking about the problem and giving away many solutions. Let's say you talk about coronavirus and then you are giving solutions like lockdown and lockdown, hand sanitization, and using mask also, and what else? So you are giving away many solutions. That is also one of the patterns. The third could be you are giving away you talk about a problem, then you give away many solutions, and then you choose one of the best solution which you want that your audience must follow, which you want that your audience must act on. Let's say you talk about coronavirus, then you give away many solutions, and then finally you say lockdown is the best solution. Okay, that is also a set pattern. And or you may also use, let's say you talk about advantages and then you give away disadvantage. Or you may talk about chronological order. What is a chronological order? Chronological order is where you talk about past, present and future. You talk about something small, bigger and the biggest. ये order है. So anything which is in order is called a pattern. So if you are giving a prepared speech or impromptu, keep in mind that there should be a pattern. आपकी ऑडियंस हाथ पकड़ के आपके साथ में चलनी चाहिए. A must take to B, B must take them to C, C point must take them to D. It should not be A to D, D to B, B to F. खिचड़ी मत बनाओ उसको. Then guys, so it should be in order. So speech should be organized in order, having a set pattern. The speech should have a set pattern. Done? चलिए, इससे पहले हम लोग आगे चले, मैं देखता हूँ आपके कुछ एक questions. Okay. I'm coming to it. अगर आपको मेरा चैनल चाहिए, आप लोग आना चाहते हैं इस चैनल पर, तो आपको इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. यहाँ पर क्रॉस बटन होगा, क्रॉस को क्रॉस कर दीजिए. क्रॉस करते ही वीडियो ऑन रहेगी, वहीं पर सब्सक्राइब बटन होगा, उसको हिट कर देना. लेकिन सब्सक्राइब के बाद साथ में एक ब्लैक आइकन होगा, बेल आइकन, उसको जरूर हिट करना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगी और मैं जब जब लाइव होता हूँ इस चैनल पे आपको पता ही नहीं चलेगा. अगर आप चाहते हो कि लाइव मेरे प्रोग्राम को देखना, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को, जो ब्लैक कलर का है, उस बेल आइकन को हिट जरूर करो. अभी करना है तो एक क्रॉस लगा होगा, उस क्रॉस को क्लिक कर दो. क्लिक करते हो क्रॉस को, वीडियो क्रॉस नहीं होगी, आपके सामने वो सब्सक्राइबर्स का बटन आ जाएगा. And I am taking up. Yup. Deepak Sharma says, hello sir. Good afternoon is been sent by Ajit Chaudhary. Hello sir. Rahul Parwal says, good afternoon. Rahul Porwal again says, good afternoon sir. Has been written by Naveen Kumar Agrawal. Hello sir. Diganta Singh. Amrik K. Singh says, good morning sir. Amrik Singh, are you my student? मेरे business class के student हो आप Amrik Singh? If yes, say yes. Looking bombastic. Okay. I like to hear you, sir. Naveen Kumar Agrawal says, and then Pradeep Pokharia. He says, sir, good afternoon. Sir, मुझे public speaking में बहुत दिक्कत है. Please बताएं कि public speaking को कैसे master किया जाए. तो ये तो कर रहे हैं हम लोग. So be regular.
ये मत समझना कि एक क्वेश्चन के आंसर से यू विल बिकम मोदी, ओबामा, ट्रम्प. बी रेगुलर ऑन दिस चैनल एवरी डे 3 o'clock. एवरी डे, जब तक लॉकडाउन है आपको फ्री में क्लास दे रहा हूँ. ले लो. सारजा प्लस GST 70,800 रुपये का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. ले लो, इसको ऐश कर लो. उसके बाद है प्रदीप पोखरियाल का एक और क्वेश्चन. सर मुझे अपनी पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करना है. हाँ यार, दे तो चुका हूँ मैं. अमरीक सिंह से सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो क्योंकि आपने उसको सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया. दोनों करना पड़ेगा आपको, सब्सक्राइबर्स भी और साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, तभी हो पाएगा. अगर बेल को नहीं किया तो आपको जब मैं लाइव होगा आपको पता ही नहीं चलेगा. दिकांता सिंह सेज यस सर आई हैव डन इट. ओके, दैट इज द इजीएस्ट वे. अरुण कुमार शाह कहते हैं सर व्हाई यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश सेपरेटली. आई थिंक योर टेक्टिक इज ग्रेट. देयर इज नो टेक्टिक यार. मुझे टेक्टिक क्या करनी है? इंग्लिश को सेपरेटली करूं? नहीं, एक ही रखो यार. मैं 3 बार लाइव हो रहा हूँ. एक बारी सॉफ्ट स्किल्स के लिए, एक बारी पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश के लिए, और ऊपर से मैं बिजनेस के लिए. कितनी बार यार? नहीं, इसको मैं एक और अलग से कर दूंगा. ऐसा नहीं करना है. और मेरे मेन कोर्स का ये पार्ट है, वैसे भी इसका पार्ट ही है. सो ये सबका उसका मेरे कोर्स का पार्ट है, तो इट हैज़ टू बी 1 क्लास ओनली. आई विल नॉट बी मेकिंग अ सेपरेट टाइम फॉर इट. ओके, एंड Amrik Singh says yes, your follower and practitioner. Oh, that means you are not my student, Amrik Singh. There's a student. He is in my business class and he manufactures baby जो साइकिल होते हैं उनकी टायर को मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्यूबलेस. And he has many factories in Narayana and Bahadurgarh. So I thought you are he. दीपक शर्मा कहते हैं बेल आइकन शो नहीं हो रहा है. अगर आप सब्सक्राइबर्स बटन को आप क्लिक करोगे तभी बेल आइकन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा. ओके, और इसके साथ में अब आपके क्वेश्चन लेता हूं मैं. यस, आपके क्वेश्चंस. अमरीक सिंह, आपका एक क्वेश्चन है. Good morning, sir. Is your book on public speaking be best for politicians? Please suggest book for political leadership and public speaking. Okay, I will give you assignment. लेकिन मेरी बुक तो रुकी पड़ी है यार, पब्लिक स्पीकिंग वाली. It should be out in the month of April. मेरी अप्रैल में बुक निकला आती है, लेकिन अब एकदम रुक गई है. So if you sincerely want to have a book on public speaking, जो मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से Dale Carnegie's book, Public Speaking and Influencing Men in Business. I shall repeat, Public Speaking and Influencing Men in Business, I think, is the Makkah Medina of public speaking, encyclopedia of public speaking. इसको ले लो आप लोग, आसानी से नहीं मिलेगी. The book was written by Dale Carnegie 1925. About 95 years ago, he wrote this book. And I think the book must have sold so far about 60-70 lakh copies, not in crores like his other books, but this still is a huge number, because public speaking itself is not a very it's not been looked after by everyone. People mostly in third world countries want to improve their English. They do not know the importance of public speaking, addressing audience. So इस कारण से ये बुक बिकी है, मेरे ख्याल से 70-80 लाख बिकी है. So you must go for this book. I look after this book only. Otherwise, I might have read other books, must have read about 30-35 books on public speaking, but this is the best one by Dale Carnegie. Vikas Verma says, well, where is the link for the session 3? Where's the link for the session 3? आप देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा. Done. तो चलते हैं हम लोग आगे. हाँ, तो मैंने आपको बताया था योर स्पीचेस शुड हैव द सेट पैटर्न. जल्दी से हम लोग 2 पॉइंट करते हैं, उसके बाद आई एम कमिंग टू योर इंग्लिश का जो हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 1 याद है आपको? आई गो, यू गो, दे गो, ही गोज, शी गोज, वी गो. आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, वी आर गोइंग, आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, दे हैव गॉन, ही हैज गॉन, शी हैज गॉन, वी हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, he has been going since morning, she has been going since morning, we have been going since morning. I went, you went, they went, he went, she went, we went. I was going, you were going, they were going, he was going, she was going, we were going. That was step number 1. Step number 2, which I gave you yesterday, it was negative.
I go, you go is affirmative. I don't go, you don't go, they don't go, he doesn't go, she doesn't go, we don't go. I am going, you aren't going, they aren't going, he isn't going, she isn't going, we aren't going. I haven't gone, you haven't gone, they haven't gone, he hasn't gone, she hasn't gone, we haven't gone. I haven't been going since morning, you haven't been going since morning, they haven't been going since morning, he hasn't been going since morning. तो ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये स्टेप नंबर 2 था. स्टेप नंबर 3 आपको दूंगा मैं, और हर बार आपको एक स्टेप देता रहूंगा. इसको प्रैक्टिस करते रहो. एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, यू आर गोइंग टू हैव awesome time. In a very short time you'll be able to improve your English. And this how I learned. अगर आप कहो तो मैं अपने सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ. मेरी गाड़ी के अंदर बैग के अंदर हो गए that I flung 3 times during school time. मैं स्कूल टाइम में 3 बार इंग्लिश के कारण से फेल हुआ हूँ. फर्स्ट में, 6 में, 10th में. और ये आई गो के कारण से whatever I'm able to, I don't say that I'm very perfect, I'm very good. लेकिन जितना भी इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, it's all because of I go. Shortest and the bestest of the ways to improve your English. तो मैं 6 पॉइंट आपको देके चुका था. दैट स्पीच शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड हैविंग अ सेट पैटर्न. एंड देन नंबर 7, यूज विजुअल एड्स इफेक्टिवली. यूज विजुअल एड्स ओनली टू एड द मैसेज. जो विजुअल एड आपको बताया था, यू रिमेंबर, फ्लिप चार्ट है आपका, OHP है, या पॉपन प्रेजेंटेशन है, आपकी PPTs है, या आपके पास कोई एग्जिबिट है, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है. इन सब को आपने इफेक्टिवली यूज करा. दे ऑल आर विजुअल एड्स. Now use visual aids only to add the message rather than make them be the message. कई लोग होते हैं जो कि स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और पूरी की पूरी स्पीच और प्रेजेंटेशन उस स्टोरी के ऊपर खत्म कर देते हैं. So that story itself become the message. No, the story, the visual aid should not become the message itself. What you have to do, you have to use them as a material to aid in your presentation, in your speech. वो आपकी मदद करे. ये नहीं कि वो खुद के खुद वही चीज बन के रह जाए. कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है या फ्लिप चार्ट है, सिर्फ उसी को आप बोलते चले जाओ. उसकी आपने मदद लेकर के अपने मैसेज को अपने सामने रखना है. जो आप चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट दैट इट शुड बी कन्वेड टू योर ऑडियंस. वो मैसेज देना है आपने, वो स्टोरी नहीं देनी है. वो आपने ऐसा ना हो कि आपका जो विजुअल एड है सिर्फ उसी के अंदर आप समझ के रह जाओ. वो आपकी मदद के लिए है, वो खुद कुछ नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना है. नंबर 8 in total. Number 8. Now you have prepared your speech, your presentation. Now what you have to do, how to practice? I would say practice the way Abraham Lincoln used to practice. See, first of all the speakers, they never acknowledge, they never accept how they prepare. They always say that they are impromptu. It's not done. It cannot be. It cannot be. You have to have preparation. You have to have some kind of practice, some kind of. If you are at the early stages of public speaking, maybe 30, 40, 50, 60, 70 times of practice. But if you are a seasonal one, you have been giving speeches, then one or two, practice of once or twice will suffice. Now do like the way Abraham Lincoln used to do. Do you know how he used to do? He has acknowledged, he told, and he was writing diaries. So when he died, we are very fortunate that we were been able to get to know that how he prepared his speeches. Like Gettysburg speech, which he delivered only 3 months before his death, before he was being killed. So in Gettysburg speech, he got the invitation about 45 days before by the authorities of Gettysburg. There are thousands of people who are buried during Second World War. So the authorities of Gettysburg, they wrote somewhere during that time that they were not expecting that their president would accept the invitation. तो उन्होंने भेजा 45 दिन पहले, which very gracefully अब्राहम लिंकन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. अब जो भी सीनेटर जाता व्हाइट हाउस में ड्यूरिंग दोज 45 डेज, उससे कहा जाता, डू यू वांट टू मीट विद अब्राहम लिंकन? यस सर. आपको उनकी स्टडी में जाना पड़ेगा. ही इज प्रिपेयरिंग हिज स्पीच, यू विल हैव टू लिसन टू हिज स्पीच. इस ढंग से इंसान हमेशा बता के करता था. सब राइटर्स, सब जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास अपने स्पीच राइटर्स होते हैं. और एक दो नहीं होते, कईयों के बहुत होते हैं. कईयों ने नहीं रखे अपने स्पीच राइटर्स. जैसे अब्राहम लिंकन के पास स्पीच राइटर नहीं था. हिटलर के पास आई हैव रेड, ही ऑल्सो डिड नॉट हैव अ स्पीच राइटर. इन लोगों ने खुद प्रिपेयर किया. अदरवाइज आई डाउट दैट मिस्टर मोदी डजंट हैव. इतने सारी इंफॉर्मेशन के पास होती है. ही हैज समबडी, not one buddy, there could be about 3, 4, 5, 6 people who are writing the speeches. So anyways, हमें इससे क्या करना है? तो अब्राहम लिंकन की एक बात कि he used to practice his speeches. नंबर 2, जब उनको गेटिसबर्ग, ये वो स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा था the government is of the people, for the people, by the people.
ये वो वाली स्पीच है. इफ यू वांट टू लिसन टू दिस स्पीच, आप गूगल में जाइए, सॉरी यूट्यूब पे जाइए और लिख दीजिए अब्राहम लिंकन्स गेटिसबर्ग स्पीच. आपको ये 3-3.5 मिनट की स्पीच आपको मिल जाएगी. आप कहीं तो दिखा भी सकता हूं मैं. आई शो यू. आधे मिनट के आपको दिखाता हूं मैं. आपको कुछ एक फैक्ट बताता हूं मैं इस स्पीच के बारे में. ये वो स्पीच है जिसकी हद बार तारीफ हुई है. ओबामा कहते हैं मैंने अपने आप को जो कुछ बनाया है इस स्पीच से काफ़ी हद तक बनाया है. अब्राहम लिंकन गेटिसबर्ग स्पीच. Yeah, look at this. It's taken from a movie actually. President of the United States. Resistance to the war was growing. Mr. Lincoln needed to reinvigorate the people, to explain to them, and perhaps himself, why this endless plague of war must continue. 7 years ago. We are not actually authorized to show you someone's video from the YouTube channel. If I start showing you, my channel will be blocked. If you don't know, I tried doing it 2 days before and my channel was blocked for a few minutes by YouTube. So I just got to know that I cannot do it. I cannot show you such videos ever. Alright, so the point I want to make is ये जो speech गेटिसबर्ग की अब्राहम लिंकन ने डिलीवर की थी, इस speech में when Abraham Lincoln was told around 12 o'clock in the afternoon that he must start moving towards the venue, which was about 4 to 5 kilometers away from the hotel where he was staying in Gettysburg. It was a very small town, and the total population of Gettysburg that time was about 10,000, but it became 40,000 because people from nearby cities and the journalists, writers, journalists, they started flooding in, and this population of 10,000 became 40,000. सो अब्राहम लिंकन उठे 12 बजे, हॉर्स बैक पे बैठे, घोड़े की पीठ पे बैठे, अपने हेड को नीचे किया और सोते हुए चल पड़े वेन्यू की तरफ, विच वॉज अबाउट 4 to 5 किलोमीटर दूर अवे. सो अगले दिन न्यूज़पेपर में आया दैट अब्राहम लिंकन वॉज सो टायर्ड दैट इन द आफ्टरनून ही वॉज स्लीपिंग ऑन द हॉर्स बैक. अब्राहम लिंकन जब अखबार को पढ़ा तो ही रोट इन हिज डायरी, अपनी डायरी में लिखा अब्राहम लिंकन ने दैट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज प्रैक्टिसिंग माई स्पीच. So I would say, अगर आप मुझसे ये कहते हो कि कितनी टाइम प्रैक्टिस करनी है, अब्राहम लिंकन was one of the finest speakers. He defeated Michael Douglas. I'm not talking about Michael Douglas, the actor. There was another politician who is believed to be a polished speaker. So he defeated Michael Douglas. He became president of United States of America. And during his presidentship, he must have delivered about 100 to 150 speeches. He was an awesome speaker, but still, for Gettysburg speech, which was only for 3 minutes, he practiced umpteen number of times. How many times he practiced, nobody knows. So if you ask me how many practices you must do, everyone does. Like somebody asked, like not somebody, Tabassum asked Lata Mangeshkar ji, when she was at the peak of her career, in one of her programs, Phul Khile Gulshan Gulshan में, तबस्सुम ने पूछा लता मंगेशकर से 1981 में इन वन ऑफ हर प्रोग्राम्स, शी आस्क्ड, लता जी क्या आप अभी भी प्रैक्टिस करती हैं, रियाज करती? कहती हाँ तबस्सुम, मैं आज भी हर रोज 2 से 5 घंटे रियाज करती हूँ. इवान गोविंस्की, ही वॉज अ पियानिस्ट. किसी ने उससे पूछा एट द पीक ऑफ हिज करियर इन 1990s कि व्हाई डू यू स्टिल प्रैक्टिस एट द पीक ऑफ योर करियर? कहता है इफ आई डू नॉट प्रैक्टिस फॉर 1 day, आई नोटिस, मुझे पता लग जाता है कि कुछ कमी है. If I do not practice for 2 days, my critics जो कमियां निकालते हैं, जिनका काम ही है कमियां निकालना, जिनका काम ही है देखना, कहता है they notice. कहता है if I do not practice for 3 days, कहता है if I do not practice for 1 day, I notice. If I do not practice for 2 days, my critics, they notice. If I do not practice for 3 days, my audience notices. Let's take an example of Sachin Tendulkar. At the peak of
peak of his career, when he had played for 15-20 years for the country, even then he was doing the net practice. Everyone does it. All the best speakers do it. Do you do it? So if you want to become a good speaker, prepare the way I've told you, but practice has to be done. How many practice, I don't know. ये डिपेंड करता है आपके कॉन्फ्रेंस लेवल पर, आपका लेवल कितना हायर है, और जिस लैंग्वेज में बोलना चाहते हो उसके बाद आपकी पकड़ कैसी। आपके दो चैलेंज है, द लैंग्वेज एंड स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली. लैंग्वेज एंड स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. डन? चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद let's have the training on facing interviews. Yep. 2 points I gave you. Put 2 points I gave you yesterday. Number 1, you must plan ahead. Number 2, you must wear clothes which are formal. Shirt, trousers, the color I gave you. And many of you who asked me, white color shirt you must wear. लेकिन वाइट कलर के सूट या ट्राउजर आपको नहीं पहनने हैं. हाँ, सब 4 कलर आपको बोले थे मैंने. What those 4 colors are? Black should be jet black, as jet as possible. Black color, navy blue, number 3 navy blue, number 3rd is all the shades of grey and dark brown. या फिर एक और कलर कर सकते हो अगर मिल जाए तो, डार्क वाइन. इट्स अ वाइन कलर. आप देखिए, अगर आपको दिखाई दे सकता है तो इट्स अ वाइन कलर, डार्क वाइन कलर. इसके अगर सूट मिल जाए, बहुत कम मिलते हैं ये कलर को. दिस वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स. वाइन कलर अगर मिल जाए, वाइन में हल्की सी रेड टेंज होती है, बहुत ही लाइट सी. और कौन सा कलर होगा? आई थिंक इसके अंदर ब्लू है, ब्लैक है एंड लाइट टिंज ऑफ रेड. दिस कॉल्ड वाइन कलर. दिस ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट वंस, माई चॉइस. लेकिन मिलता नहीं है आराम से. अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपको, इफ़ यू आर गोइंग टू फेस ऑडियंस, फेस इंटरव्यू, आपको पता करना चाहिए what the HR wants to have. उस कंपनी में जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसका जो HR है वो चाहता क्या, उसके क्वेश्चन किस ढंग के होंगे. मैंने आपको एक तो बताया था, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑल दीज MNCs ऑफ द बिग कंपनीज, यहाँ पर लोग जब भी जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद दे गो टू कोरा एंड दे रेज क्वेश्चंस और दे गिव द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चन आंसर में उस कंपनी के बहुत सारे FAQs और साथ में उनके आंसर मिल जाएंगे. Best is you must know before facing the audience who the HR is of that company and what kind of question generally he asks. हर इंसान के अपने कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि होते हैं. हर इंसान के साथ में इंटरव्यू करते हुए अलग अलग क्वेश्चन नहीं ला सकता, उसके इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती. तो हर इंसान के अपने कुछ एक सेट पैटर्न हो जाते हैं और उसी को बार बार पूछता है. यही होता है. तो आपको जाना चाहिए वेबसाइट पर लगेगा कोरा क्वेश्चन से, बहुत और जगह पे जाके अगर आप सब सर्च बार में लिख दो द कंपनीज नेम एंड FAQs, मोस्ट लाइकली अगर अच्छी कंपनी है तो आपको उसके FAQs मिल जाएंगे. अगर छोटी बड़ी कंपनी है जिसकी टर्नओवर है सिर्फ 5-10 लाख करोड़ रुपए की, नहीं मिलेगा. लेकिन अगर कंपनी की टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ऊपर की है, हर हाथ में आपको FAQs मिल जाएंगे. सो थ्रू विद द हेल्प ऑफ दीज FAQs यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही मोस्ट लाइकली गोइंग टू आस्क यू. राइट, मस्ट नो. ये आपको काम करके जाना है. दिस कॉल्ड प्रोएक्टिवनेस. डन. 3rd पॉइंट. नंबर 4, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ आपको मैं. नंबर 4th है, अब ये FAQs लेने के बाद जब आपने डाउनलोड कर लिए, डू यू हैव अ फ्रेंड, सिबलिंग कोई है, अब उससे कोई इन क्वेश्चन को आपसे पूछे, प्रैक्टिस अगेन. इसकी प्रैक्टिस करके जाना.
प्रैक्टिस करके जाओगे ना, मजा आ जाएगा आपको. देखो, you are selected not because of the knowledge, you are selected because of the confidence you have. 80% of the times, 20% is it's because of your aptitude and 80% because of your confidence and attitude. आपके एटीट्यूड के कारण से और आपके कॉन्फिडेंस के कारण से आप सिलेक्टेड होते हो. इसलिए माय सजेशन इज, आफ्टर डाउनलोडिंग दोस FAQs, यू मस्ट आस्क योर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोलीग कि आपसे क्वेश्चन पूछे, यू गिव एम आंसर, क्वेश्चन आंसर एंड डू इट 2-3 times in the afternoon, 2-3 times in the morning, afternoon, evening, morning, afternoon, evening, morning, afternoon, evening. Do it for 3-4 days. Or okay, if you do not have 2-3 days, do it for at least 1 day. 3-4-5-6-7-8 times, and then go and face the interview. I'm telling you, 80 to 90% chances are you'll be selected. 4 points I've covered so far. Number 1 is plan ahead. Number 2, power dress. Number 3, you must get to know what HR wants to have. And number 4, you must practice. Then guys, clear? जल्दी से मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूं यहां पर. उसके बाद we are coming to the third step of I Go You Go. Yup. FAQs, आहा. अमरीक के सिंह कहते हैं FAQs, आहा. फिर अमरीक ने कुछ और भी लिखा है, सर आपको पता नहीं आप कितना बड़ा काम कर रहे हो. क्या काम कर रहा हूँ यार? 70,000 का अपना नुकसान कर रहा हूँ पर पार्टिसिपेंट. एंड महेश शेरीकर कहते हैं एब्सोल्युटली राइट सर. संजय गर्ग कहते हैं ऑल थिंग्स इक्वल, अ मैन विल हायर समवन हु इज मोर कॉन्फिडेंट. Yes, he will hire somebody not only because he is confident. He hires because he wants to have somebody who has the knowledge of the job. But usually he consciously, unconsciously lands up hiring a person who is confident. वो ऐसे इंसान को लेता है जिसके पास एप्टीट्यूड है, नॉलेज है. लेकिन कई बारी ऐसा इंसान जिसके पास नॉलेज पता नहीं लग पाती उसकी नॉलेज कैसी है, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस से उसको लगता है कि इस बंदे में नॉलेज ज़्यादा होगी, इसमें एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, इसमें वर्क डोमेन नॉलेज ज़्यादा होगी. तो कॉन्फिडेंस से पता लगता है. अगर आप मान लो, आप एग्जाम्पल के तौर पे यू हैव ऑल द नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन बट यू आर मीक. यस सर, हाँ सर मैं कर लूँगा सर. तो क्या होगा? आपका इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं पड़ेगा. लेकिन वहीं पर आपको इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो, आपके कॉन्फिडेंस से स्वेड होके वो आपको सिलेक्ट कर लेता है. HR के दिमाग के ऊपर वार करो, हमेशा HR के दिमाग पे वार करो. उसकी वेबसाइट को खंगारो, FAQs को लेकर उसी के क्वेश्चन उसी को जवाब दे दो. जैसे आपको 80 to 90% आपको मैं बता रहा हूं, यू विल बी सिलेक्टेड. डन. ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग आपके स्टेप नंबर 3 पर. मुझे बताइए, आप लोग कर रहे हो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2? क्या आप लोगों ने, आर यू गाइस रेगुलर? चलिए आइए हम लोग करते हैं अब स्टेप नंबर 3. 3 भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, लेकिन स्टेप में 3-1 में 3B भी शामिल है. स्टेप नंबर 3A, दिस इज इंटरोगेटिव. फर्स्ट वॉज अफर्मेटिव, second was negative, third is interrogative. I go you go is affirmative, I don't go you don't go is negative. Interrogative is do I go, do you go, do they go, does he go, does she go, do we go, am I going, are you going, are they going, is he going, is she going, are we going, have I gone, have you gone, have they gone, has he gone, has she gone, have we gone, have I been going since morning, have you been going since morning, have they been going since morning, has he been going since morning, has she been going since morning, have we been going since morning, did I go, did you go, did they go, did he go, did she go, did we go, was I going, were you going, were they going, was he going, was she going, were we going, had I gone, had you gone, had they gone, had he gone, had she gone, had we gone, had I been going since morning, had you been going since morning, had they been going since morning, had he been going since morning, had she been going since morning, had we been going since morning, will I go, will you go, will they go, will he go, will she go, will we go,
Will I be going? Will you be going? Will they be going? Will he be going? Will she be going? Will we be going? Will have I gone? Will have you gone? Will have they gone? Will have he gone? Will have she gone? Will have we gone? Will have I been going since morning? Will have you been going since morning? Will have they been going since morning? Will have he been going since morning? Will have she been going since morning? Will have we been going since morning? ये है स्टेप नंबर 3 और अब हम लोग 3A ही कर रहे हैं. 3B I'll give you tomorrow. I've changed my decision और जल्दी से इसको प्रैक्टिस कर लो एंड डू द वे आई एम टेलिंग यू. और आपका 3A जो है मस्ट टेक अबाउट 60 to 70 seconds to complete. 60. If you are taking lesser than 60, that means you are being very fast. But if you are taking more than 70, that 70 seconds. So the moment you start, you must put the clock stopwatch on and do not take more than 70 seconds. If you are taking 70 seconds, that means you have to practice about 10, 15, 20, 25 times more. Then guys, all right, so I hope today's session was awesome, and if you have gained, if you have any question, you may write in the comment section of any of the videos. Now I'll make it live most probably, and कभी कभी वीडियो लाइव नहीं हो पाती है, लाइव मतलब अपलोड नहीं हो पाती है. और if you have want to ask a question, you may write. I told you. और if you want to take my time, अगर आपको मेरे साथ टाइम चाहिए, पर्सनली चाहिए, that is payable. उसके लिए आपको मेरी टीम से बात करनी है और द नंबर इज क्या है 7834998181. आई विल रिपीट 7834998181. एंड नाउ आई विल बी लाइव अगेन ऑन माई अदर चैनल एट 5 o'clock ऑन द अदर सॉफ्ट स्किल्स. बाकी की जो सॉफ्ट स्किल्स है उसके लिए मैं लाइव होऊंगा शाम को 5 बजे मेरे दूसरे वाले चैनल पे. राइट गाइस, बाय बाय. शबा खैर, बी सिंह या ऑफ विडजेन सिया बी सिंह या.